I am audible to you people. आप एक बार confirm करो the screen is visible to you and I am audible to you people. Then we will start. Very good, very good. So that is great, that is great. तो यहाँ पे हम start करेंगे. So now let us start the topic. तो हम यहाँ पे topic को start करेंगे. तो हमारा topic जो है that is acid base concept. That's concept of acids and bases. This will be very important topic. So the topic is concept of acids and bases. Concept of acids and bases, that is acid base concept. So basically there are different types of concepts which explain what an acid is and what a base is. There are different concepts जिनसे हम एक्सप्लेन करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री को. तो विल एक्सप्लेन ऑल दीज कंसेप्ट्स इन डिटेल. तो फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास जो है दैट इज एरिनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो डिस्कस करेंगे एरिनियस कंसेप्ट को. फर्स्ट कंसेप्ट इज एरिनियस कंसेप्ट. तो डिस्कस करते हैं एरिनियस कंसेप्ट को. एरिनियस कंसेप्ट. लेट अस डिस्कस एरिनियस कंसेप्ट. Arrhenius concept of acids and bases. So according to Arrhenius, what is an acid and what is a base? So Arrhenius concept जो है इसका एक important point आप यहाँ पे note down करो. It's applicable to aqueous solutions. It's applicable to aqueous medium. मतलब इस concept को हम explain करते हैं only in aqueous medium. Concept can be explained only in aqueous medium. मतलब which is applicable to aqueous medium. तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक्वस मीडियम लेना है, मतलब आपको यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर लेना है. तो किसी भी स्पेशी को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उससे हमें पता चलेगा वो एसिड है या बेस है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज अ स्पेशी व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H+ आयन कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई स्पेशी है Ha. अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा so if it gives H+ ion concentration, if it gives H+ ionus, then it's an acid. If it gives H+ ionus, then it's an acid. तो मेरे पास यहाँ पे H+ ionus and it will dissociate into A- ions. तो basically ये जो हमारा Ha है, ये जो हमारा H+ ion है, this is aqueous. Aqueous means हमारे ऑक्सीजन के पास lone pair of electrons है. We know that oxygen contains lone pair of electrons. तो बेसिकली होता क्या है इसमें, Ha will dissociate, it will dissociate towards A, this will become A negative. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी. lone pair of electrons on water, it will attack on this proton. तो यहाँ पे lone pair of electrons on water will attack this proton and you will get H3O. You will get H3O+. तो बेसिकली जब भी lone pair of electrons अटैक करता है, तो हमारे पास उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आती है जिस एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं. तो दिस इज फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज. इसको हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है. प्लस आपके पास A- आएगा. अब आपकी मर्जी है, आप H3O को लिखो या H+ aqueous को लिखो. बेसिकली बोथ ऑफ देम आर सेम. तो व्हेन यू आर राइटिंग H3O+, इट इज बेसिकली H+ in aqueous solution. इस H3O+ को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. This is called a hydronium ion. This is called a hydronium ion. तो इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. जो हमारा नेसेंट H+ आयन होता है, it does not exist as such. It exists in the form of H3O+ ion. Means H+ exists in the form of hydronium ion. So basically we will write this H+ in the form of H3O+, or we can simply write it in the form of H+ aqueous. This H+ aqueous means H3O+ ion. तो बेसिकली दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो जब भी आपकी स्पेशी जो आपके पास होगी, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, ऑन डिसॉल्विंग वाटर इफ इट गिव्स H+ aqueous ion or if it gives H3O+ ion, then it will be called an acid. फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन इज मोर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो इसको अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, आई विल ट्रीट इट विद वाटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
this lone pair of electron will attack this H plus ion. Because electronegativity of chlorine is more, this will dissociate like this. तो यहाँ पे आपकी जो बन के आएगा that will be H3O plus, that will be H3O plus plus आपके पास Cl negative ion आएगा. Now since HCl on dissolution in water gives you hydronium ion or H plus ion, we can call that this HCl it's an Arrhenius acid. So what are Arrhenius acids? Arrhenius acids are the species which when dissolved in water, Arrhenius acids are the species which when dissolved in water give H plus ionous hydronium ion. So what are Arrhenius acids? Arrhenius acids are the species which when dissolved in water give H plus ions. So Arrhenius acids are the species. अब सब लोग वीडियो ऑफ रखो. So Arrhenius acids are the species which when dissolved in water give H plus ion aqueous or H3O plus ion, that's hydronium ion. तो हम यहाँ पे लिखेंगे Arrhenius acids की definition. These are the species. Species means it can be compound over here as well. These are the species which when dissolved in water, which in aqueous solution furnish H plus ions, furnish hydronium ion H3O plus ion, or you can call it H plus aqueous ion. Means they furnish H plus aqueous ion in aqueous solution, then they will be called Arrhenius acids. For example, let me take examples. So I will just now write the examples like this. मैं अब ऐसे examples लिखूंगा. For example, मेरे पास ये वाला compound है. मेरे पास HBr है. Now this HBr is aqueous. Aqueous means it is treated with water. Now you can write like this: HBr aqueous. It means you are treating HBr with water. तो यहाँ पे dissociate होके अगर आपका H plus aqueous देगा, and plus it will give Br binds. अगर आपका ये H plus ion देगा, then it is Arrhenius acid. Therefore we can conclude that HBr is Arrhenius acid. HBr is Arrhenius acid. So what is an Arrhenius acid? Arrhenius acid is the species. अगर आप उसको water में dissolve करोगे, that will give H plus ion in aqueous solution, then that will be called Arrhenius acid. So basically Arrhenius acid जो है इसमें आपके पास H plus ion होना चाहिए ताकि वो water पे जाके H plus ion दे सकेगा. Now similarly we can define Arrhenius base over here. Now what are Arrhenius bases? Arrhenius bases are the species, or they are the compounds which when dissolved in water give hydroxyl ion. Hydroxyl ion means give OH minus ion. For example, हम Arrhenius base को define करेंगे यहाँ पे base according to Arrhenius concept. For example, मेरे पास NaOH है, मेरे पास NaOH है. इस NaOH का मैं aqueous solution लूंगा. I will take aqueous solution of this NaOH. इसका मैं aqueous solution लूंगा. Now aqueous solution means I will treat it with water. तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? Na plus and OH minus ion. So those species which give this OH minus ion, this is called a hydroxyl ion. Which give hydroxyl ion in aqueous solution, they are called Arrhenius bases. तो हम लिखेंगे the species which furnish which give hydroxyl ion on dissolution in water or in aqueous solution is simply in aqueous solution, they are called Arrhenius bases or called Arrhenius bases. They are called Arrhenius bases. तो यहाँ पे हमने सीखा Arrhenius acid क्या होता है and Arrhenius base क्या होता है. Now according to Arrhenius concept, acid is a species which gives H plus ion and a base is a species which gives OH minus ion. तो मुझे बताओ according to Arrhenius concept which of the following is an acid. मेरे पास for example H2SO4 है, मेरे पास for example magnesium hydroxide है, मेरे पास for example cesium hydroxide है, मेरे पास for example HNO3 है. तो मुझे बताइए यहाँ पे मैं acids लूंगा और यहाँ पे मैं bases लूंगा. Let this is A compound, this is B compound, this is C compound, this is D compound. तो आपको बताना है which among these is Arrhenius acid and which is Arrhenius base. तो आपको बताना है इनमें से Arrhenius acid कौन सा है और Arrhenius base कौन सा है.
ये जल्दी से मुझे बताओ, which among these A B C D will be Arrhenius acids? तो एसिड्स इनमें से कौन होंगे, एरिनस एसिड्स इनमें से कौन होंगे? तो यहाँ पे आपको बताना है which among these will be Arrhenius acids. A and D are acids, B and C are bases. Very nice. A and D are acids and B and C are bases. तो OS ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर दिया, A and D. तो महक फारूक ने भी आंसर दिया, B and C are bases. Very good. हुमैरा सुल्तान, very nice. तो यहाँ पे देखो, दिस इज Arrhenius acid because it can give H plus ion. तो यहाँ पे OH ion नहीं निकलेगा ना, दिस इज बेस, यहाँ पे आपका OH minus ion निकलेगा, दिस इज बेस, यहाँ पे आपका OH minus ion निकलेगा. तो we can say B and C are bases, A and D are acid, A and D are acid. तो बेसिकली इस कंसेप्ट की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है ना. व्हाई? बिकॉज आप उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो जिनके पास आपका H प्लस होगा या OH माइनस होगा. You can classify only those compounds. Very nice. Adil Shugupta, very good. Very good. Nahida Jan, very good. So you can classify acids and bases only those species which have H plus ion and OH minus ion. So let me elaborate this concept. इस concept की application देखिए. What are the applications of this concept? So let us see the application of Arrhenius concept. Applications of Arrhenius concept. तो application part देखेंगे. एप्लीकेशन ऑफ Arrhenius कंसेप्ट को अगर हम देखेंगे, हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यू नो S ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पे यूजुअली ज्यादातर हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं और यहाँ पे हमारे सारे मेटल्स होते हैं. यहाँ पे मेटल्स भी होते हैं लेकिन मेटल्स आर लेस इन नंबर, मोस्टली दे आर नॉन मेटल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे फास्फोरस है, दीज आर नॉन मेटल्स. तो यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल सोडियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे मैग्नीशियम है. तो इनके ऑक्साइड्स अगर बनाएंगे, इनके ऑक्साइड्स बनाएंगे, एरिनस कंसेप्ट तो कुछ चीज को एक्सप्लेन करता है. तो अगर इनके ऑक्साइड्स में बनाऊंगा, आई विल कॉल देम मेटल ऑक्साइड्स. तो जो भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगा, और अगर इनके ऑक्साइड्स बनाऊंगा, दे विल बी कॉल्ड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स. तो बेसिकली अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड. एंड ऑक्साइड इज अ कंपाउंड. ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड इज अ कंपाउंड. अगर कोई भी एलिमेंट ई कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, इट विल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड. तो अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से सॉरी कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाता है विद ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड ऑक्साइड. तो यहाँ पे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का फॉर एग्जांपल NO2 बनेगा, NO भी बनेगा, N2O3 भी बनेगा, सल्फर का फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, सल्फर का सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का NO भी बनेगा. दीज ऑल विल बी नॉन मेटल ऑक्साइड्स. तो यहाँ पे अगर आप ऑक्साइड्स बनाओगे, यू विल फॉर्म Li2O. तो ग्रुप फर्स्ट मेटल्स विल फॉर्म Li2O, Na2O. सिमिलरली आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. These will be metal oxides. These will be metal oxides and these are non-metal oxides. These are non-metal oxides. Basically, Arrhenius concept इस चीज को explain करता है. For example, I'll take it. I'll explain it with the help of example. For example, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है या बेस है अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept. तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वाटर. तो आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करो. इफ यू ट्रीट कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, व्हाट इज फॉर्मड? द फेमस कंपाउंड इज फॉर्मड, दैट्स कॉल्ड H2CO3, कार्बोनिक एसिड. तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता है. नाउ दिस कार्बोनिक एसिड कैन डिसोसिएट. ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो सकता है. इट विल गिव यू H plus aqueous, plus it will give you HCO3 minus ion. तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैंने एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड. अगर मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड का एक्वस सोल्यूशन दिया, दैट गिव्स मी एसिड. तो उस एसिड को अगर मैं एक्वस एसिड को डिसॉल्व करूंगा, दैट विल गिव मी H पॉजिटिव आयन. So if a species gives H plus ions in aqueous solution in water, then that is Arrhenius acid.
So we can conclude a general statement over here. All non-metal oxides are Arrhenius acids. Now this is very important. All non-metal oxides are Arrhenius acids. So basically we can conclude over here, all non-metal oxides are Arrhenius acids. For example, अब मैं non-metal की जगह किसी metal को लूंगा, metal oxide को लूंगा, I'll take metal oxide. तो मैं अब यहाँ पे कोई metal oxide लूंगा, I'll take metal oxide over here. For example, मैंने लिया Li2O को, this is a lithium oxide, metal oxide है, या मैंने लिया Na2O को. अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा, व्हाट इज फॉर्मड? हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्मड. मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्मड NaOH. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, दिस विल बी 2. now this hydroxide can dissociate, it will give me Na plus OH minus ions. तो बेसिकली जब मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, इट गिव मी OH minus ions. तो बेसिकली वी कैन कंक्लूड दैट all metal oxides are Arrhenius bases. Have you got this concept? This is the application. क्या आपको ये वाली application समझ में आ गई? This is very important. Have you got this concept? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? Why all metal oxides are Arrhenius acids, and why all metal oxides are Arrhenius bases, and why all non-metal oxides are Arrhenius acids? Have you got this? Very good. तो आगे चलते हैं. वेरी गुड. तो आगे चलते हैं. इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप इस क्वेश्चन का सलूशन मुझे बता. तो मुझे बता, which of the following species are Arrhenius acids? Which of the following given species में आपको बताना है, which among these are Arrhenius acids? Which among these are Arrhenius acids? Arrhenius acids. तो आपको बताना है. मैं यहाँ पे लूंगा HCl aqueous, मैं यहाँ पे लूंगा HBr, मैं यहाँ पे लूंगा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लूंगा NO2, मैं यहाँ पे लूंगा SO2, मैं यहाँ पे लूंगा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लूंगा कैल्शियम ऑक्साइड. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन, लेट दिस इज, अच्छा इसमें नंबरिंग करो, लेट दिस इज A, let this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन लविज एसिड है, सॉरी एरिनस एसिड है. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन स्पेशी एरिनस एसिड है. तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्पेशी एरिनस एसिड है. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, विच ऑफ दीज स्पेशीज इज एरिनस एसिड. तो इनमें से कौन सी स्पेशी एरिनस एसिड है. तो यहाँ पे आंसर्स आ गए ए. अच्छा सिर्फ ए है, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे एक्सेप्ट ई. अच्छा एक्सेप्ट ई, तो वैस ने बोला यहाँ पे एक्सेप्ट ई सारे हैं. शुगुप्ता ए एंड बी. अरे यार देखो यहाँ पे एक्वस लिखा है, यहाँ पे एक्वस नहीं लिखा है. मीन इफ दिस इज नॉट एक्वस, इफ HBr, अगर आपके पास HCl एक्वस है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको मेंशन करूंगा दिस इज गैस. तो अगर आपके पास HCl गैसेस है, तो दो में से, इन दो में से A एंड B में से कौन सा एरिनस एसिड है. तो A एंड B में से कौन सा एरिनस एसिड है. इन दो में से आप मुझे बोलो, A एंड B में से कौन सा एरिनस एसिड है. इन दो में से पहले मुझे बोलो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये जो इस स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में मैंने बनाया, इनमें से बोलो दोनों. अरे यार क्या बोल, साहिल वेरी गुड, ओएस वेरी गुड, शुगुप्ता वेरी गुड. मैंने कहा ना आपको, एरिनस कंसेप्ट सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में हम यूज करते हैं, वी यूज इट इन एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे इट इज इन गैसियस फॉर्म, तो दिस कैन नॉट बी एरिनस एसिड, दिस एन एरिनस एसिड. तो यहाँ पे इसको मैंने गैसियस फॉर्म में लिखा, दिस कैन नॉट बी एरिनस एसिड. Now HCl is Arrhenius acid, we know that it is in aqueous medium. NO2, this is a non-metal oxide, it is Arrhenius acid. SO2, non-metal oxide, it's Arrhenius acid, but this is metal oxide, so this is Arrhenius base. तो इसको बेस कहेंगे. A, C और D, these are acids, and HBr जो है, it is neither acid nor base because it is in gaseous form. It's neither Arrhenius acid nor base. बिकॉज एरिनस एसिड का कंसेप्ट है सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में
वैलिड होता है, नॉट इन गैसियस स्टेट। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट आप समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? वेरी गुड। हैव यू गॉट इट नाउ? हैव यू गॉट इट नाउ? हैव यू गॉट इट नाउ? क्या आपको ये वाला कंसेप्ट आप समझ में आ गया? वेरी गुड। तो लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस? हमें क्यों जरूरत पड़ेगी एक और कंसेप्ट को मतलब यहाँ पे स्टडी करने की? व्हाई टू स्टडी अदर कंसेप्ट? तो इस कंसेप्ट की लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ एरियंस कंसेप्ट। तो जो हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा एरियंस कंसेप्ट, इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस? नंबर फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस concept is applicable. This concept is applicable to only aqueous media. तो आपके पास aqueous media जरूरी होना चाहिए। This concept is applicable only to aqueous media. तो आपके पास aqueous media जरूरी होना चाहिए। This concept is applicable only to aqueous media. मतलब water is necessary, मतलब H2O is compulsory. H2O is compulsory. Presence of water is compulsory. This is one drawback. सर फिर से कहिए, मतलब शबीर अहमद क्या फिर से कहना है? आप मुझे बताओ क्या फिर से कहना है? दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू एक्वस मीडिया, मतलब वाटर जरूरी है। सो अगर आपके पास वाटर नहीं होगा यू कैन नॉट कॉल दैट एन एसिड। फॉर एग्जांपल आपके पास Br इन गैसियस स्टेट होगा, यू कांट कॉल इट एसिड, दिस विल नॉट बी एरियस एसिड बिकॉज वाटर इज नेसेसरी। तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स फर्स्ट ड्रॉबैक, दिस बिकम्स फर्स्ट लिमिटेशन। This becomes first limitation. मेरी अरे किसकी स्क्रीन ऑफ है? अच्छा, तो वहीं पे आपको कुछ गड़बड़ हो गई, मेरी स्क्रीन ऑफ नहीं। अच्छा नाउ सी नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कोई और सॉल्वेंट लोगे, अगर आप किसी और सॉल्वेंट में मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, अगर आप HCl को किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सॉल्वेंट है, हमारे पास बेंजीन भी सॉल्वेंट है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन भी सॉल्वेंट है, हमारे पास फॉर एग्जांपल इथेनॉल भी सॉल्वेंट है। अगर आप HCl को किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे देन इट विल नॉट बी एरियस एसिड, देन इट विल नॉट, मैं कहता हूँ एरियस एसिड, याद रखना, देन इट विल नॉट बी एरियस एसिड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड डिसएडवांटेजेस, वी कैन नॉट यूज ओवर हियर अदर सॉल्वेंट्स, other solvents, other solvents except water cannot be used। तो इस मीडियम में, इस कंसेप्ट में हम वाटर के बगैर कोई और सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते हैं, वी कांट यूज एनी अदर सॉल्वेंट। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे दानिश कौन है आप में से? दानिश अपना वीडियो बंद करो ना, ये दानिश कौन है? दानिश को बोलो अपना वीडियो बंद करो। चलो इसको यहाँ पे म्यूट करो। एक सेकंड आप वेट करो। अरे ये जो दानिश है ना, दानिश ऋषि, अपना वीडियो आप बंद करो। दानिश ऋषि अपना वीडियो बंद करो, अदरवाइज मैं आपको एग्जिट करूंगा फ्रॉम दिस क्लास। तो नंबर थर्ड और हियर इज, व्हाट इज दिस फरहान? अच्छा नाउ नंबर थर्ड और हियर इज, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जो आपने बॉन्डिंग में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास BF3 है, मेरे पास AlCl3 है। नाउ सी BF3, दिस इज बोरान, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन,
दिस इज फ्लोरीन, दिस इज BF3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स। So it is deficient of 2 electrons. So it will accept electrons. So this is also acid, but according to Arrhenius concept, he could not classify these electron deficient species as acids or bases. So Arrhenius could not classify electron deficient compounds could not be explained by Arrhenius concept. So Arrhenius concept could not explain acidic nature of electron deficient compounds. Acidic nature of electron deficient compounds could not be explained by Arrhenius concept. These are very 3 important limitations. तो डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ, क्या आपको ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ? क्या आपको ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ? क्या आपको ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ? अगर आपको ये वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट, दैट्स लावोरी ब्रोनिस्टेड कंसेप्ट। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, दैट्स ब्रोनिस्टेड लावोरी कंसेप्ट। तो सेकंड कंसेप्ट ओवर हियर इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। So this is very very important concept. So second concept is Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept. Now this is very very important concept. So this concept is also called proton donor. This concept is called proton donor acceptor concept. It is called proton donor acceptor concept. प्रोटॉन हम H+ को कहते हैं। It is called proton donor acceptor concept. So according to this concept, an acid is a species which donates a proton, which is proton donor. Proton donor species. An acid is a proton donor species. Acid is that species which donates proton, तो जहाँ पे H+ ion हमारा रिलीज होगा, that's an acid. And a base is a species which accepts proton, which is proton acceptor, and acid is a species which is proton donor, and a base is a species which is proton acceptor. So this is acid base concept according to Bronsted, but इस concept का बहुत ही ज्यादा importance है। ये concept बहुत ही ज्यादा important है, इसलिए हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl है, मेरे पास HCl है। इस HCl को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो व्हाट हैपन्स ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये मेरे पास HCl, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, नाउ सी ये मेरे पास HCl है, HCl will dissociate, it will give me H+, plus it will give me Cl-। तो यहाँ पे वाटर इसको एक्सेप्ट करेगा, वाटर किसको एक्सेप्ट करेगा, H+ को, मीन्स वाटर इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, वाटर इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो स्पेशीज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी दैट्स अ बेस, मीन्स वाटर यहाँ पे बेस है। और जो स्पेशीज प्रोटॉन को डोनेट करेगी, HCl डोनेट्स प्रोटॉन, HCl यहाँ पे एसिड, मीन्स HCl प्लस वाटर अगर हम ट्रीट करेंगे HCl को वाटर के साथ, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, आपका बनेगा H3O प्लस आपका बनेगा Cl-। तो बेसिकली HCl ने यहाँ पे प्रोटॉन दिया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू Cl-। जो स्पेशीज प्रोटॉन देगी दैट्स कॉल्ड एसिड। तो दिस इज ब्रोनिस्टेड एसिड, यूजुअली हम इसको ब्रोनिस्टेड एसिड कहते हैं। एंड H2O accepts this proton, this is a base, this is acid and this is base. So species which accepts proton, that's acid, and a species which donates proton, that's acid, and a species which accepts proton, that's a base. Species which donates proton, that's acid, and a species which accepts proton, that's a base. तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा, मेरे पास अमोनिया है, आई विल ट्रीट दिस अमोनिया विद वाटर, मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 में से इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 5 - 3 दैट इज 2, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ नाइट्रोजन। So lone pair of electrons means excess electrons यहाँ पे है, this will attack this H+ ion.
तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली अमोनिया ने एक्सेप्ट किया H प्लस आयन को, तो हमारे पास NH4 बन के आया। सिंस लोन पेयर ने अटैक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस यहाँ पे हमारा OH माइनस आयन बन गया। Now since ammonia accepts proton, this ammonia acts as a base and water यहाँ पे furnish करती है proton, it is called acid. So this is bronested acid and this is bronested base. तो यहाँ पे आपने एक बात को क्लियरली अंडरस्टैंड किया होगा कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसमें वाटर एक्ट करता है एज बेस, और इस वाले कंपाउंड में वाटर करता है एक्ट एज एसिड, देयरफॉर वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। ये चीज एरियस ने एक्सप्लेन नहीं की थी। तो यहाँ पे वाटर इट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड और अ बेस, इजंट इट? यहाँ पे वाटर कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। क्या मैं इस रिएक्शन को फिर से बताऊं? क्या मैं इस रिएक्शन को फिर से एक बार बताऊं? क्या मैं इस रिएक्शन को फिर से एक बताऊं? अरे क्या हुआ आपको? अभी तो कंसेप्ट स्टार्ट ही हुआ। अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे? जो वाटर है, वाटर हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा देन इट विल फॉर्म H3O+, और इट कैन रिलीज प्रोटॉन, और ये फर्निश प्रोटॉन करेगी, इट कैन डोनेट प्रोटॉन। इफ इट डोनेट्स प्रोटॉन देन इट फॉर्म्स OH-। Now, since water accepts proton, it becomes base. तो यहाँ पे water base act करेगा, यहाँ पे water acid act करेगा। Those species which behave both as an acid and a base, they are called amphotric substances. They are called amphotric substances. They are called amphotric substances. Now, what are amphotric substances? Which have both characteristics, which behave as acid as well as base. So these are called amphotric substances. Water is an amphotric substance because it acts both as an acid and a base. So what are amphotric substances which behave both as an acid and a base? So यहाँ पे water acts both as an acid and a base. Have you got it? Have you got it? So let me take more examples of this concept. अभी इस concept को बहुत डिटेल में ले जाना है हमें, इसलिए इसके और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस कंसेप्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिटिक एसिड है, मेरे पास एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर के साथ डिसॉल्व करूंगा तो आपको बताना है इन दिस केस एसिटिक एसिड क्या करेगा, एक्ट एसिड और बेस, वाटर क्या एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस एसिटिक एसिड इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म एसिटेट आयन्स। तो यहाँ पे आपके एसिटेट आयन्स बनते हैं। तो बेसिकली ये H प्लस आयन को रिलीज करता है, देयरफॉर इट इज एसिड। कौन सा एसिड? ब्रोनिस्टेड एसिड। तो मैं इसको B एसिड लिखूंगा, ब्रोनिस्टेड एसिड। तो वाटर यहाँ पे एक्सेप्ट प्रोटॉन करता है, वाटर एक्ट्स एज अ ब्रोनिस्टेड बेस। तो वाटर यहाँ पे एक्ट करता है एज ब्रोनिस्टेड बेस। तो वाटर विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, इफ वाटर एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इट विल फॉर्म H3O। तो लोन पेयर ने अटैक किया, देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो इस कंपाउंड में वाटर एक्ट्स एज अ ब्रोनिस्टेड बेस। नाउ यू नो दैट एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, देयरफॉर इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन्ड ओवर हियर। तो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि एसिड बेस में ऑलवेज देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपका एसिटेट आयन है, ये अगर वाटर के साथ ट्रीट करेंगे मतलब रिवर्स रिएक्शन होगी। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन में दीज आर रिएक्टेंट्स, दिस इज एसिटेट आयन एंड दिस इज आवर H3O+ आयन। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज आवर H3O+ आयन। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जो एसिटेट आयन है इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो दैट आपका एसिटिक एसिड वापस बन जाएगा। तो दिस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पे एसिटेट आयन सिंस इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन इट एक्ट्स एज अ बेस, और वाटर यहाँ पे डोनेट प्रोटॉन करता है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो इट विल एक्ट एज एन एसिड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम में आपका जो स्पेशीज एसिड एक्ट करता है उसका आपको कोई बेस भी मिलता है, जो स्पेशीज बेस एक्ट करती है
उसका आपको कोई एसिड भी मिलता है, उसका आपको कोई एसिड भी मिलता है। इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी टेक दिस एग्जांपल। तो मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे ले लूंगा। मेरे पास HCl है, इसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा। तो what will happen over here, let it's a weak electrolyte, it's diluted। तो यहाँ पे क्या होगा, water will accept this proton and this chloride ion will leave। तो आपके पास मिलेगा H3O प्लस प्लस आपके पास Cl माइनस आएगा ना। दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl ने प्रोटॉन दिया, देयरफॉर इट्स एसिड, इट्स ब्रोनिस्टेड एसिड। वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इट विल बी बेस। तो क्लोराइड आयन बेसिकली रिवर्स रिएक्शन में यहाँ से प्रोटॉन लेगा, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, दिस विल बी बेस। और हाइड्रोनियम आयन यहाँ H प्लस आयन माइनस इज अ बेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एसिड एंड दिस बेस? इनमें कौन सी डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एसिड एंड दिस बेस? इस एसिड और बेस में कौन सी डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? मुझे लगता है डिफरेंस इसकी है, मुझे लगता है डिफरेंस इसकी है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एसिड एंड दिस बेस, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आती है बिटवीन HCl एंड Cl माइनस? द डिफरेंस इज दिस H। तो डिफरेंस यहाँ पे प्रोटॉन की है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये मेरा कंपाउंड है, यहाँ पे प्रोटॉन है, और इस वाले बेस में प्रोटॉन नहीं है। तो इसको कहते हैं हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो यहाँ पे एक नई टर्म हमारे पास आ गई, दैट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर, दैट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर, दैट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। Now what is a conjugate acid base pair? Conjugate acid base pair is an acid base pair which differ by proton. This is acid base pair. This is acid base pair which differ by proton. Which differ by proton, by one proton. Which differ by one proton, जिसमें एक प्रोटॉन की डिफरेंस है, that's called conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair. Cl को पॉजिटिव आयन नहीं है। अरे Cl का कहाँ पॉजिटिव आयन होगा फैसल, क्या बोलते हो? Cl को पॉजिटिव आयन नहीं है। This is called conjugate acid base pair. Now see how this is how this Cl minus is a base. आपका Cl minus वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जिस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेशीज विल अटैक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेशीज एंड यू विल गेट HCl. The species which accepts proton, that is a bronisted base, therefore Cl minus is a base. So HCl is an acid, Cl minus is a base, so we can say HCl जो acid है, इसका conjugate base हमारे पास Cl minus है. This is the conjugate base of HCl. Conjugate base of HCl is Cl minus. Conjugate base of HCl is Cl minus. तो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो इस पे हम आप देखेंगे और एग्जांपल्स विल क्लियरिफाई दिस कंसेप्ट मोर। तो इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियरिफाई यहाँ पे करेंगे, इसके और ज्यादा एग्जांपल्स देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसिड है, मेरे पास HBr एसिड है। तो मुझे बता HBr एसिड की कंजुगेट बेस क्या होगी? नॉट टेल मी व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HBr। व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HBr? वेरी गुड। व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HBr? तो मुझे जल्दी से यहाँ पे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने आंसर दिया, फैसल ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो कंजुगेट बेस ऑफ HBr विल बी Br माइनस। इफ दिस इज एसिड, इसकी कंजुगेट बेस विल डिफर बाय वन प्रोटॉन। तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकालो, दिस विल बी कंजुगेट बेस, दिस विल बी कंजुगेट बेस। तो मुझे बता HI की कंजुगेट बेस क्या होगी? व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HI? What is the conjugate? Very good. Br minus Humera ji. Very nice. Zakir, very good. तो HI की मुझे बता, what is the conjugate base of HI? तो HI का conjugate base क्या होगा? I minus. Very nice. I minus is the conjugate base. अच्छा मुझे बता इस वाले कंपाउंड में, अब मैं थोड़ा इसको और डिटेल में इसकी एग्जांपल्स लूंगा, मतलब मैं इसकी और डिटेल में एग्जांपल्स लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H2SO4 है, H2SO4, दिस इज एन एसिड, ये मेरे पास एसिड है।
तो मुझे बता इसकी कंजुगेट बेस क्या होगा। व्हाट इज द कंजुगेट बेस? क्या HSO4 माइनस होगा या SO4 2 माइनस होगा? व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस? दो में से आप बताओ कौन सा होगा। दैट दिस इज ए, दिस इज बी, तो आप मुझे बता ए होगा या बी होगा कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4? कंजुगेट बेस, अरे यार देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको और इसको कंपेयर करोगे तो कितने प्रोटॉन्स की डिफरेंस है? यहाँ पे दो प्रोटॉन्स है, यहाँ पे कोई नहीं है, डिफरेंस ऑफ टू प्रोटॉन। तो मैंने कहा कंजुगेट एसिड बेस पेयर वो एसिड बेस पेयर होता है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओनली वन प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन है। So this is the conjugate base of H2SO4. This is the conjugate base. This is the conjugate base of H2SO4. Have you got it now? Difference of only one proton होना चाहिए। Shugupta, very nice. Faisal, very nice. HSO4 minus Nahida, very nice. You have got it now. तो similarly अगर मेरे पास HSO4 माइनस होगा, अगर मैं इसको डेसोसिएट करूंगा, आई विल गेट SO4 2 माइनस, एक नेगेटिव यहाँ पे है, एक इस हाइड्रोजन से आएगी ना। अगर ये मेरा एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस होगा, ये इसका कंजुगेट बेस होगा। एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच गिव्स प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन निकल सकता है, एंड दिस विल बी इट्स कंजुगेट बेस। तो दिस विल बी इट्स कंजुगेट बेस। हैव यू गॉट इट? अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा, लेट अस गो टू द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे जाएंगे डायरेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पे जाएंगे। तो यू नो दैट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आपके पास OH आयन है, यहाँ पे आपके पास OH आयन है। तो बेसिकली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, आपका H प्लस निकल के आएगा। अगर आपका H प्लस निकल के आएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। आपको ये वाला कंपाउंड बनेगा, प्लस आपका H प्लस आयन निकलेगा। सिंस दिस गिव H प्लस आयन, therefore this is an acid. This gives H plus ion in aqueous solution, therefore this is an acid. कौन सा acid? Bronsted acid. Now इसने H plus ion दे दिया, therefore this is conjugate base. This is conjugate base. Why? Because यहाँ पे दो प्रोटॉन्स है, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, this is conjugate base. इसी चीज को हम कहते हैं, एक हमारे पास H है, इसी चीज को हम कहते हैं एक हमारे पास H है और एक हमारे पास यहाँ पे सल्फर है, और 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम्स है और नेगेटिव चार्ज, इसी को कहते हैं HSO4। इसी को हम HSO4 कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी और डेसोसिएशन करूंगा, मैं ये वाला प्रोटॉन भी निकालूंगा, तो यहाँ पे आपका एक और प्रोटॉन निकलेगा, प्लस यू विल गेट, सिंस इट गिव्स प्रोटॉन, नाउ इट विल एक्ट एज एन एसिड। तो ये बेस भी एक्ट करेगा, एसिड भी एक्ट करेगा, तो इट एक्ट्स एज एन एसिड। यहाँ पे आपका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। इसी चीज को आप कहते हो SO4 2 माइनस। हाँ सी, इस और इसमें क्या डिफरेंस है? आप यहाँ पे देखो, इस और इस पे कौन सी डिफरेंस है, इस और इसमें कौन सी डिफरेंस है, इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में कौन सी डिफरेंस है? मुझे लगता है डिफरेंस ऑफ वन प्रोटॉन। तो अगर ये प्रोटॉन देता है, दिस इज एसिड, और ये इसकी कंजुगेट बेस बनती है। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट सर? ये सर, अच्छा, हैव यू गॉट इट? वेरी गुड। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे आके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर, द स्ट्रॉन्गर द एसिड, या ऐसे आप देखो, a strong acid, a strong acid has weak conjugate base, has weak conjugate base। मतलब जितना ज्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो उतनी कम वीक, वो उतनी वीक होगी। उसकी कंजुगेट बेस जो होगी, दैट विल बी वीक, तो वो वीक होगी, एंड दिस विल बी स्ट्रांग। तो मतलब इस पे क्वेश्चन एक करेंगे, यहाँ पे आया है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कंजुगेट बेस, a weak acid has strong conjugate base, both conditions are same। अरे यार क्या हुआ आप लोगों को?
नाउ सी आप कोई परेशान नहीं करेगा। नाउ सी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी कंजुगेट बेस दैट विल बी ऑलवेज वीक। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है और मेरे पास HI है। दीज आर द कंपाउंड्स। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर के साथ ट्रीट किया है। तो दिस गिव्स मी H प्लस एंड F माइनस, this gives me H plus and F minus. So similarly, this will give me H plus aqueous. This is aqueous. Plus it will give me Cl minus. And this gives me H plus aqueous. Plus it will give me Br minus. And this gives me H plus aqueous. And this will give me iodine minus. तो मुझे बता ये वाले कंपाउंड जो है ABCD, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर? तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर? इनमें से ये वाले कंपाउंड जो है, ये वाले कंपाउंड, तो इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? अरे यार क्या बोलते हो? इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? नाउ सी, आप कैसे कहोगे इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? हमने अभी पढ़ा एसिड वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन देता है। एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन देता है, मतलब जितना ज्यादा देगा, मैं यहाँ पे उर्दू में लिखूंगा, जितना ज्यादा देगा, जितना ज्यादा देगा H प्लस आयन उतना ज्यादा एसिडिक, उतना ज्यादा एसिडिक। जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, द मोर एसिडिक इट विल बी। अब मुझे बताइए प्रोटॉन देने की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी? मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है, मेरे पास HI है। तो किसमें बॉन्ड वीक होगा वहां पे H प्लस जल्दी निकलेगा। अब मुझे बता किसमें बॉन्ड वीक है, HF में या HBr में या HCl में या HI में? HI इज वीक बॉन्ड, वेरी गुड। तो HI इज वीक बॉन्ड, बेसिकली क्यों वीक है? यहाँ पे साइज ऑफ फ्लोरीन स्मॉल है and size of hydrogen is small. तो bond is formed between small sized orbitals, bond will be strong bond. यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है बट आयोडीन का साइज वेरी लार्ज है। तो आपने सुना होगा वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक टायर ट्रैक्टर का हो और दूसरा टायर साइकिल का हो, तो वो कौन सी स्टेबल कंडीशन होगी? तो दिस बॉन्ड इज लॉन्गर एंड दिस बॉन्ड इज वीक। अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये इजीली डिसोसिएट होगा, अगर ये इजीली डिसोसिएट होगा तो दिस विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। So the order of acidic nature will be D greater than C, greater than B, greater than A. ये बात आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि एसिडिक ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा? H प्लस आयन निकलने पे। H प्लस आयन किस पे डिपेंड करेगा? It will depend the strength of the bond that is bonded by hydrogen to other atom. तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो आपका H प्लस इजिली नहीं निकल जाएगा। If this bond is weak, H minus H प्लस यहाँ पे ज्यादा इजीली निकल जाएगा, और जितना ज्यादा इजीली H प्लस निकल जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। हैव यू गॉट इट? ना कहने की बात यह है दिस इज द एसिडिक ऑर्डर। सो अगर ये मेरे पास एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। अगर ये मेरे पास एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। अगर ये मेरे पास एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। अगर ये मेरे पास एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। तो मुझे बता इनमें से लेट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, the order of strength of these conjugate bases। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन सी होगी? इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन सी होगी? तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन सी होगी? वेरी गुड। तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस कौन सी होगी? वेरी गुड। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी वीक कंजुगेट बेस होगी। देयरफॉर दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी कंजुगेट बेस वीक होगी। दिस इज वीक एसिड, इसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सो द ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस विल बी, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस विल बी A greater than B, greater than C, greater than D. This is why the application of the concept is. Have you got it? अरे भाई
रिवर्स ऑफ एसिडिक वाटर, ये तो वही जो मैंने कहा ना, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कंजुगेट बेस जो होगी वो वीक होगी। दैट्स इनवर्स रिलेशनशिप। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट नाउ? नाउ मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप सॉल्व करके दोगे, जो आप सॉल्व करके दोगे उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक पे होगा, आपके क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक पे होंगे, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखूंगा, बस वो आपकी होमवर्क होगी। उसके बाद लविस कंसेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप होमवर्क ले लो, उस पर ट्राई करो। तो आप होमवर्क पे ट्राई करो, विच आर व्हाट इज एसिड, विच अमंग दीज इज एसिड, और इसकी कंजुगेट बेस क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ दीज एसिड्स। तो 7.12 है आपकी टेक्स्ट में क्वेश्चन 7.12, क्वेश्चन नंबर 7.12 है। तो इस 7.12 में हमारे पास HF दिया हुआ है, हमारे पास H2SO4 दिया हुआ है, हमारे पास HCO3 माइनस दिया हुआ है। तो इनके आपको दीज आर एसिड्स, इनके आपको कंजुगेट बेसिस बनाने हैं, कंजुगेट बेसिस बनाने हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, आपको कंजुगेट बेस बनाने हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन 7.3 है, 7.13। तो 7.13 में, तो 7.13 में आपको क्या करना है, आपके पास दिया हुआ है NH2 माइनस और आपके पास दिया हुआ है NH3, आपके पास दिया हुआ है HCO माइनस, इनके आपको बनाने हैं कंजुगेट बेसिस, इनके आपको कंजुगेट एसिड्स बनाने हैं। तो दीज आर बेसिस, इनके आपको कंजुगेट एसिड्स बनाने हैं, फॉर्म कंजुगेट एसिड्स। तो मैं यहाँ पे लिखूं फॉर्म कंजुगेट एसिड्स, तो आपको बनाने हैं कंजुगेट एसिड्स। कंजुगेट एसिड मतलब आपको एक हाइड्रोजन ऐड करना है यहाँ पे, इसको ऐड करोगे इट विल बी NH3, इसको ऐड करोगे इट विल बी HCOH, इसको ऐड करोगे इट विल बी NH4 प्लस। तो सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.14 है, इसमें आपको दिया गया है वाटर और आपके पास है HCO3 माइनस, आपके पास है HSO4 माइनस, आपके पास है अमोनिया। These can act both as acids and bases। तो आपको इनका इनका बनाना है एसिड और बेस पेयर, एसिड और बेस पेयर इनका बनाना है। अगर एसिड भी बनेगा बेस भी बनेगा, they are amphotric substances। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.15, इसमें दिया हुआ है OH माइनस, इसमें दिया हुआ है F माइनस, इसमें दिया हुआ है H प्लस, इसमें दिया हुआ है आपको BCl3। तो इनमें से आपको बताना है which one is Bronsted-Lowry, according to Bronsted-Lowry concept, which one is acid and which one is base। This can be nothing। तो यहाँ पे आपके पास ना प्रोटॉन है, नो OH, यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलेगा बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन ही नहीं है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट इवन प्रोटॉन। तो आपको इन तीन में बताना है विच इज ब्रोनिस्टेड एसिड एंड विच इज ब्रोनिस्टेड बेस। तो इसको हम कल लेविस एसिड में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आप सोल्यूशन करना। तो यू कैन आंसर मी ऑन यूट्यूब चैनल, आप मुझे यूट्यूब चैनल पे आंसर कर सकते हो इन क्वेश्चंस के, या यू कैन आंसर इवन मी ऑन व्हाट्सएप। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मुझे एक बार बोलो, ये एसिड बेस कंसेप्ट, ये जो दो कंसेप्ट हमने पढ़े ये आपको क्लियर हो गए? एक बार मुझे क्लियर करके बोलो ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, देन आई विल स्टॉप दिस मीटिंग। वेरी गुड, इसे प्रैक्टिस करना सो दैट मोर एंड मोर यू कैन गेट। वेरी गुड खुशबू, मेरा ओएस, अल्बिना वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जाकिर कुमार वेरी नाइस। इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं वो भी सॉल्व करना। आई एम गोइंग टू स्टॉप आवर मीटिंग ओवर हियर। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।